Assalamu alaikum dear students. Chapter number 1, the topic is Ideology of Pakistan and Allama Iqbal. The question is, describe the ideology of Pakistan in the light of the pronouncements of Allama Muhammad Iqbal. Dear students, as you know that in the beginning Allama Iqbal was a supporter of the Hindu-Muslim unity, but the narrow-mindedness and the biased attitude of the Hindus forced him to rethink. That means these first paragraphs will be based on the same wording from the question in the pronouncements of Qaid-e-Azam and in the pronouncements of Allama Iqbal. But you just have to continue this question after writing the first paragraph, that Iqbal gave the Muslims an idea of a separate state through his poetry. He awakened the Muslims. We can explain ideology of Pakistan in the light of the pronouncements of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So the first line is about the presidential address of Allahabad 1930. This is, as you know, this is very famous address. So in this address, what Allama Iqbal said? Allama Iqbal categorically said that there should be a separate country for the Muslim community, because on the different differences basis, and consolidated Muslim state is the best interest in India and in Islam. So इससे मुराद है कि अल्लामा इकबाल ने अपने इस खुतबे में बहुत ही वाज़ेह अल्फाज में ये शक्ल वाज़ेह कर दी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मौजूद हैं, इसलिए हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज़ का एक साथ रहना अब पॉसिबल नज़र नहीं आता है। लिहाजा मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ को मिलाकर एक स्टेट बना दिया जाए, एक ऐसी स्टेट जहाँ पे मुसलमान अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। और ये डिमांड जो मुसलमान कर रहे हैं, ये डिमांड इंडिया की भी फेवर में है और इस्लाम की भी फेवर में है। इन द नेक्स्ट लाइन्स, टू नेशंस इन द सब कॉन्टिनेंट. As you know from the title, two nations in the subcontinent. In these lines, Iqbal told about the different differences of the Hindu and Muslim communities. In the next lines, Allama Iqbal political thoughts. Allama Iqbal was of the view that the Muslims due to Islam form a millat and their power and strength depends on Islam. So in the most of his poetry, he presented the key concept of the basis of Islamic millat. He said, as you can see, that Allama Iqbal said categorically clear that अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमी रसूल हाशिम, उनकी जमीयत का है मुल्को नस्ब पर इन्हिसार, कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी. इससे मुराद है कि इसमें इन लाइंस में अल्लामा इकबाल ने मुस्लिम मिल्लत की असास के हवाले से बहुत ही एक रियल कॉन्सेप्ट जो था वो पेश किया कि कभी भी अपने आप को कंपैरिजन ना करें मगरबी कौमों के साथ, क्योंकि हम सबसे बेहतर कौम हैं, क्योंकि हम कौमी रसूल हाशमी हैं. उनकी जमीयत का, उनका इत्तेहाद, उनकी यूनिटी जो है वो दो चीज़ों पे बेस्ड है. एक तो एक कंट्री कितना डेवलप्ड है और दूसरा उसकी कितना वेल्दी है, कितना बेहतर कंडीशन में है. लेकिन मुसलमानों की असल जो कुव्वत है वो सिर्फ उनके यकीनी इत्तेहाद और पायदार इत्तेहाद के अंदर ही मुज़मर है. सो मुसलमानों को कभी भी अपने आप को अक़वाम मगरिब से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. इन द नेक्स्ट लाइन, इस्लाम इज़ अ कोर ऑफ लाइफ. एज यू नो स्टूडेंट्स कि अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को मज़हब इस्लाम के हर पहलू को अपनाने और रंग व नस्ल के बुतों को तोड़ देने का मशवरा दिया था. यानी हमें इन तमाम किस्म की डिस्क्रिमिनेशंस से निकलना होगा और हमें अपने आप को इस्लाम के सांचे में ढालना होगा. जैसा कि यहाँ पे शेर भी लिखा गया कि बुतान रंग व खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तो रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी. यानी डिफरेंट मुस्लिम कम्युनिटीज़ जो डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं, उनको अपने अंदर से रंग और अपने खून के डिफरेंसेस को ख़त्म करना होगा और अपने आप को एक मिल्लत के सांचे में ढालना होगा. यानी इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को प्रमोट करना होगा.
That means it's considered that all the Muslims living in any part of the world form one millat. Okay, the next and last one line is Muslims as one nation. Muslims as one nation. In these lines, Iqbal said that all the Muslims living in the part of the world from one millat. Therefore, he gave the message to the Muslim community living from the shore of the Nile to the land of Kashgar to be united for the protection of Haram. इसके साथ एक शेर भी लिखा गया कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर. इससे मुराद है कि इकबाल ने सारी दुनिया में बसने वाले मुसलमानों को एक मिलत का कॉन्सेप्ट दिया. इसलिए उन्होंने फरमाया कि नील के साहिल से लेकर काशगर तक के मुसलमानों को सिर्फ हरम की पासबानी के लिए एक होना चाहिए. So thank you so much, students.